السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدرسہ عزیز العلوم کے شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے ہونے والا عظیم الشان جشن یوم صدیق اکبر آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ الحمدللہ یہ دوسرا سالانہ ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی محبتیں شامل رہیں اور اسی بیداری کے ساتھ آپ کی شرکت رہی تو اس پروگرام کو مزید وسیع کیا جائے گا اور باضابطہ طور پر انشاءاللہ آج بھی ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں شاندار پروگرام کے انعقاد کے لیے عزیزم نوجوان عالم دین، فعال متحرک نوجوان خطیب حضرت مولانا مفتی خالد رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ شاندار بزم پاک سجائی گئی ہے۔ اللہ انہیں عمر دراز عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ہمارے مدرسے کے محتمم صاحب حضرت مولانا محمد حسین رضا قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر مدارس سے ہمارے علماء آئے ہوئے ہیں، ان سب کا ہم اپنے مدرسے کی طرف سے استقبال کرتے ہیں، عوام اہل سنت کا استقبال کرتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو لیکن مجھے بہت یاد ہے، بہت زیادہ وقت میں نے آپ لوگوں کا لے لیا تھا اور اس سال میں نے سوچا تھا کہ آج کی خصوصی ہماری محفل کی تقریب مفتی خالد رضا صاحب کریں گے، چونکہ وہ نوجوان ہیں، ان سے امیدیں وابستہ ہیں اور بہت بڑا ہندوستان ہے، بر صغیر کا دائرہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، تو آپ ہی اس کو آگے بڑھائیں اور مزید دعائیں ہم لوگوں کی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہی خصوصی خطاب فرمائیں گے۔ انہوں نے ایک اچھا موضوع بھی مجھے دیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا بھائی میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا مولوی صاحب ہوں اور اسی میں مجھے جو آئے گا وہ سنا دوں گا، باقی آپ موضوع آپ تقسیم فرما دیا کریں۔ تو بہرحال انہوں نے موضوع دیا، اب وہ موبائل میں ہی ہے، اس کا میں زیادہ مطالعہ بھی نہیں کر پایا، زیادہ کیا بالکل نہیں مطالعہ کر پایا۔ مسجد میں بیٹھ کر کے نہ آپ جھوٹ سن سکتے ہیں نہ میں الحمدللہ جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ کتابیں ختم ہو جائیں گی مگر اس کا ذکر ختم نہ ہوگا، ہے نا؟ کتابیں ختم ہونے سے مراد مکمل ہو جائیں گی مگر ان کا ذکر ختم نہ ہوگا۔ صبح شام مکمل، رات مکمل ہو جائے گی، صبح کا آفتاب طلوع ہو جائے گا مگر ذکر ابو بکر صدیق پر کبھی غروب کا آفتاب نہیں دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ اتنی عظیم بارگاہ ہے وہ،
हमारे नानपारा के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल सत्तार साहब क़िबला, हमारे सदरुल मुदर्रिसीन साहब मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक साहब नूरी, हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहब असातिज़ाए मदरसा ज़ुलूम, इन हज़रात की मौजूदगी में चंद बातें मोहब्बतों की लेकर के बारगाहे सिद्दीक़ अकबर में हाज़िर हूँ और मुख्तसर तकरीर ही करूँगा इंशाअल्लाह। जो भी जहन में आएगा अल्लाह का हुक्म होगा, ज़बान पर जारी होगा, बहुक्म इलाही गौर कर दूँगा। बाकी इंशाअल्लाह खुसूसी तकरीर मुफ्ती खालिद रज़ा साहब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, परेशानी की सबसे बड़ी बात यह है, आज के दौर में हम जिस शख्सियत का जिक्र सुनने और करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से हमें अपने नौजवानों को इश्क़ रसूल के बारे में बताना चाहिए। भाई, जब जब नामे अबू बकर सिद्दीक कानों में गूंजता है तो जहन में तसव्वुर आशिक़ रसूल का भी आता है। तो हमें अपनी कौम के नौजवानों को हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क़ रसूल किस अंदाज का था, इस बारे में बताना जरूरी है। मगर अफसोस सद अफसोस, आज तक राफ़ज़ियों की तरफ से यह कहा जाता था कि खलीफा अव्वल हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं, लेकिन अब कुछ सुन्नी हजरात, चूंकि आप भी बाहर जाते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है, घर बैठे हुए आप पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं, 1 घंटे में ही पूरी दुनिया के उलमा को सुन भी सकते हैं सोशल मीडिया पर, नेट पर। अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है कि कुछ खानकाहों से भी खुले लफ्जों में न सही लेकिन दबे लफ्जों में यह जहन देने की कोशिश की जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अब मुफ्ती साहब भी बयान करेंगे, हमारे उलमा बयान कर रहे हैं कि बिला फसल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो 1-2 मिनट के लिए आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये मजलिस शायद इसलिए सजाई गई है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा अव्वल साबित करें और हजरत अली को खलीफा चहरुम साबित करें। शायद के एक लम्हे के लिए आपको ये लगे, मगर अल्लाह गवाह है, हमारी मजलिस ये इसको साबित करने की सुन्नियों की तरफ से जरूरत है ही नहीं, ये सुन्नियों का साबित शुदा मसला है। हमें तो उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए थी दूसरी बातें, मगर अफसोस कि हमें हमारे दुश्मनों ने, और हकीकत तो यह है कि दुश्मनाने इस्लाम ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है कि हम अपनी पूरी तकरीरों का जोर उसी बात पर लगा हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारी कौम के नौजवान भटक जाए। मैं 4 साल पहले नेपालगंज में तकरीर कर रहा था। एक गांव है नेपालगंज शहर से करीब में, नेपालगंज शहर के लोग गए हुए थे, वो नया नया मेरा नेपाल जाना हुआ था। एक मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी फजीलत मौला अली पर तकरीर की, तो वो लोग सुन करके गदगद हो गए और नारे पे नारा लगाना शुरू। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, तो आप जानते हैं मैं भांप गया मसले को। मैंने किसी से डरे बगैर और 10-20 के लालच के बगैर साफ जुमलों में कहा कि नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। तो बजाय ये कि सुभान अल्लाह कहने के वहां से रफू चक्कर हो गए। और जब दूसरे जलसों में मैं गया तो पता चला पूरी टोली मौजूद थी कि मौलाना को तकरीर नहीं करने देंगे। इधर अपनी भी टोली मौजूद थी कि इंशाअल्लाह कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे साथ हक है और हम हक के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी नेपालगंज का ये मसला बहुत छिड़ा हुआ है। ये नेपालगंज कितनी दूर है आपसे?
सुन्नियों के नाम पर इकट्ठा होते हैं, उन्हीं की मजलिसों में शरीक होते हैं और फिर बाबेला बचाते हैं। मस्जिद के बाहर कहेंगे कि अली का पहला नंबर, मगर किसी रागसी नुमा मुसलमान में, बरायना मुसलमान में यह हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों से इमाम को खुतबे के दरमियान रोका जा सके। दुश्मनाने अबू बकर सर पटक पटक के मर जाएंगे, मगर हमारी मस्जिदों में जो जुमे के दिन खुतबा होता है उसमें यही पढ़ा जाता है, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहदीद अमीरुल मोमिनीन अबी बकर। मैंने उन लोगों से कहा था कि अगर आप अपने कौल और फिक्र में सच्चे हैं, अगर हिम्मत हो तो नेपालगंज की मस्जिदों में इमाम को खुतबा पढ़ने से रोक दो। अगर ओरिजिनल मौलाई हो तो या तो खुतबे को रोको, वरना कान धर करके खुतबे को सुनते रहो, क्योंकि वही हक है जो मस्जिदों के मिंबर पर पढ़ा जा रहा है। और मोटी सी बात है, दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है जहां अल्लाह की रहमतें सबसे ज्यादा नाजिल होती हैं? कौन सी है वो जमीन? यकीनन आप कहेंगे कि काबा शरीफ वो जगह है जहां पर अल्लाह की तमाम तर रहमतें नाजिल होती हैं। रुए जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। भाई मुफ्ती साहब माशाल्लाह, अगली बार प्रोग्राम जो है ये दिन का रखो या रात का रखो। अब बहुत पब्लिक आई माशाल्लाह, उलमा आए हैं। एक इमाम साहब आ गए, समझो 50 मुक्तदी आ गए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कोशिशों को सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा है जमीन का? यकीनन काबा है, काबा है। लेकिन हमने उस इमाम अहमद रजा का दामन थामा है जिन्होंने बताया कि जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा वो है, जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ है। उलमा फरमाते हैं वो काबा शरीफ तो क्या, वो तो अर्श आजम से भी अफजल है। अर्श आजम से भी अफजल है। दुनिया समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन इमाम अहमद रजा दुनिया को बता रहे हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जमीन का वो हिस्सा, इस पर जाहिद बाबू आवाज सुन रहे हो तो आ जाए मस्जिद में। हाँ, अच्छा। जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, वो जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। वो काबा शरीफ तो क्या, वो अर्श आजम से भी अफजल है। अब मुझे बताइए कि तमाम अल्लाह की सबसे ज्यादा रहमतें नाजिल होती हैं तो रोज़े रसूलुल्लाह पर नाजिल होती है। इसमें आपको भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई शुबा नहीं होगा। और उस रोजे में आराम फरमा है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोजे में आराम फरमा है यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये जो आप लोग हरा गुंबद देखते हैं, जिसे गुंबद खजरा कहते हैं, इसमें तन्हा नबी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां शाना है, वहां पर सरे अबू बकर सिद्दीक उनके मुकाबिल में, यानी करीब में। और जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का शाना है, वहां हजरत उमर फारूक आजम का सर है। ये दो शख्सियतें हैं मेरे नबी के करीब में, आराम फरमा। एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा,
बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक आजम का हाथ पकड़ा, दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया कि हम दुनिया में भी इसी तरह हैं और इंशाअल्लाह क़यामत में भी हम दो तीनों इसी तरह से उठाए जाएंगे। अब इन पागलों से कोई पूछे कि जो रसूल के करीब में आराम फरमा है वहां रहमतें ज्यादा नाजिल होती होंगी या फिर दीगर जगह रहमतें ज्यादा नाजिल होती होंगी? हजरात, और ऐसा नहीं है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में दफन होने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक जबरदस्ती चले गए, ऐसा नहीं है। असल में जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त करीब आया, चूंकि ये उर्स भी है और यौम भी है, दोनों है, जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, सर्दी के मौसम में 7 जुमादल उखरा को, इस महीने को जुमादल उखरा नाम से जाना जाता है, 7 जुमादल उखरा को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया। सर्दी शदीद थी, बदन को लग गई, बुखार आ गया। 15 दिन उसी बुखार में रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और एक वक्त वो भी आया कि आप खुद से मस्जिद नहीं जा सकते थे, तो दीगर लोगों का सहारा लेकर के गए और फिर घर ही में नमाज पढ़ने लगे। और आपने हुक्म फरमाया कि मेरे मुसल्ले पर हजरत उमर फारूक आजम खड़े होकर के उम्मत की इमामत करें। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने अपनी जिंदगी में ही खलीफा बना दिया। सुभान अल्लाह। 22 जुमादुल उखरा, जिस दिन आपका विसाल हुआ, आपने हजरत आयशा से फरमाया कि बेटी आयशा, जिस दिन मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरा दिल यही चाहता है कि अल्लाह मुझे उसी दिन दुनिया से उठाए, और जिस तरह का कफन मेरे रसूल के लिए लगाया गया था वैसे ही कफन मेरे लिए भी इस्तेमाल किया जाए। और हजरत अली से फरमाया कि जिस बर्तन से तुमने रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था उसी बर्तन से मुझे भी गुस्ल दे दिया जाए। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं बवक्ते विसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब में था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से फरमाया कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए और मेरी नमाज जनाजा हो जाए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपने फरमाया जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे रोज़े रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना। आ गई, जरा गौर से समाप्त करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर ले जाकर के रख देना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं कि आपके रोजे में आपके करीब में दफन हो जाए। हजरत उमर ने जब नमाज जनाजा पढ़ाई और जिसमें पाक सिद्दीक अकबर को रोज़े रसूलुल्लाह के सामने रखा गया, हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िन, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर हैं और आपके रोजे में दफन होने की इजाजत चाहते हैं। तो तारीख बताती है कि नबी का रोजा दरवाजे से बंद, रोजा कमरा हुजरा दरवाजे से बंद था, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अदखुलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब को हबीब से मिला दो। इस हदीस की रोशनी में यह पता चलता है कि सहाबा का अकीदा यह था कि मेरे नबी जिंदा हैं, हजरत अली का अकीदा यह था कि नबी जिंदा हैं, इसलिए
इसलिए नबी को मुर्दा ख्याल करने वाले अहमकों, बेवकूफों, तुमसे बदतरीन मखलूक जमीन पर कोई नहीं है। अगर तुम जमीन नबी को मुर्दा मान के खुद को जिंदा समझते हो तो तुम चलते फिरते तो हो मगर मुर्दा हो। अल्लाह की कसम कयामत ना आ जाए कहीं कि रसूलुल्लाह को मुर्दा कहने वालों की तादाद में अगर इजाफा होता गया। अर्ज यह है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी अकीदा था कि नबी जिंदा है, सहाबा का अकीदा था नबी जिंदा है, गौसे आजम का अकीदा है कि नबी जिंदा है, हजरत अली का अकीदा है नबी जिंदा है, आला हजरत का अकीदा है नबी जिंदा है, सैयदना सलारे मसूद गाजी का अकीदा है नबी जिंदा है। मुफ्ती नालपारा की रूह पुकार करके आज भी कहती है नबी जिंदा है। हम सब कहते हैं नबी जिंदा है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। अरे बोलो भाई, नबी जिंदा है के? इसलिए जिन मौलवियों का ये अकीदा है, इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में ये अकीदा देने की कोशिश की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, मेरे नबी तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अलबत्ता इस्माइल देहलवी की कब्र का अता पता नहीं है, क्योंकि वो खुद मर के मिट्टी में मिल गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा जानो। और जो इस तरह का अकीदा रखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए माज़अल्लाह, तो वो खुद मुर्दा है। ऐसे मौलवियों से भी दूर रहो और ऐसे मुकर्रिरीन की तकरीरों से भी दूर रहो। बड़ा अफसोस होता है जब सुन्नियत, हम लोग सुन्नी तो कहलाते हैं, मगर जब हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हम उससे खिलखिला के मुस्कुरा के हंसते हैं, मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बदमज़हब से तुर्श रूई के साथ मिलो। बदमज़हब से अगर मुलाकात हो जाए तो उसके सामने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, बल्कि चेहरे पर तेवरे हजरत उमर होना चाहिए। समझ गए? अभी तो आलम यह है कि जरा से थोड़ा सा पैसा आ गया तो हम लोग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और मदरसे वाले हम लोग खुद मदरसे वाले हैं। अरे 10 रुपया चंदा नहीं देगा, 5000 चंदा नहीं देगा, तो क्या वहाबियों के 10-5 हजार चंदे से मदरसे चलते हैं? सुन्नियों के मदरसे इंशाल्लाह सुन्नियों के ताबून से चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और वहाबियों के आधे मदरसे भी हम सुन्नियों के चंदे से चलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारी सुन्नी अवाम गफलत की वजह से उनको अपना चंदा दे देती है। याद रखिए, वहाबियों को ज़कात देना, बदअकीदों को ज़कात देने से ज़कात अदा ही नहीं होगी। वहाबियों को ज़कात देने से ज़कात अदा ही नहीं होगी, और अदा करने पैसा देने वाला भी गुनहगार होगा। इसलिए कि अगर उसकी वजह से वहाबियत फली फूली तो फिर हम लोग भी गुनाहों में मुलविस होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं। आप कहेंगे मौलाना आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अर्ज ये है मेरे भाइयों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ में है गालिबन, नबी फरमाते हैं कि ये जितने बिदाती हैं बदमज़हब, नबी ने इरशाद फरमाया ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं, कुत्ते। नबी फरमाते हैं ये जहन्नमियों के कुत्ते हैं। आका ने फरमाया जब दुश्मन नबी से मिलो तो तुर्श रूई के साथ मिलो। चेहरे पर रोब होना चाहिए, चेहरे पर उसको लगना चाहिए कि ये सुन्नी है, हमसे इस वजह से नफरत कर रहा है कि हम नबी के गुस्ताख हैं। हजरात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उनके साथ
इय्याकुम इय्याहुम वला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू मअहुम वला तुसल्लू अलैहिम। नबी ने इरशाद फरमाया, वहाबियों से दूर रहो, बदमज़हबों से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें फितने में डाल दें, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें गुमराह न कर दें। नबी फरमाते हैं, इन मरीदू फला तऊदूहुम, अगर वो बीमार भी हो जाएं तो उनकी इयादत न करो, अगर मर जाएं तो उनके जनाजों में शिरकत भी न करो, अगर मिल जाएं तो सलाम भी न करो, न उनके जनाजों में शरीक हो, न उनकी सोहबत में रहो, न उनके साथ खाओ, न उनके साथ पियो, न उनके साथ बैठो, न उनके साथ अपने बच्चों के निकाह करो और न उनके पीछे नमाज पढ़ो, न उनकी नमाज जनाजा पढ़ो। इसलिए कि गद्दार अबू बकर सिद्दीक है वो शख्स जो नबी को मुर्दा मानता है। माज़अल्लाह, अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ रसूल को रासिख करने की कोशिश कीजिए। आज के दौर में सिर्फ तकरीरें सुनना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना यही काफी नहीं है। तकरीरों पर अमल किया जाए। और जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं इतना तो हम खुद भी जानते हैं। अगर मैं इस जुर्म में शरीक हूं तो मस्जिद रहने रजब में आप हजरात को गवाह बनाकर तौबा करता हूं कि इंशाअल्लाह इस तरह के जुर्म में अब मुस्तकबिल में कभी शरीक नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, और कोशिश करेंगे कि दूसरों को भी इस अजीम गुनाह से बचाएं। सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान अवामी खलक मलक से हो रहा है। सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान ये आज की जो बज़्म सजाई गई है उसकी वजह यही है ताकि हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का मुताला करें। आपको मालूम नहीं है कि एक जंग के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के लड़के उनकी तलवार की जद में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए थे, उन्होंने बाप समझ के छोड़ दिया। जब इस्लाम लाने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान जब इस्लाम ले आए तो एक दिन दोनों बाप बेटों में जिक्र होने लगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं, अब्बा जान, जंगे बदर में एक वक्त वो था कि आप मेरी तलवार की जद में थे, मेरे पास मौका था कि आपकी गर्दन उड़ा दूं, मगर बाप समझ के मेरी तलवार रुक गई, बाज आ गया, वरना आपका सर कलम कर देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि तेरे पास ये मौका था, तू बाज रह गया। अगर यही मौका मेरे पास होता तो अबू बकर ये न समझता कि मेरे सामने मेरा बेटा है, बल्कि ये समझता ये दुश्मन नबी, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, वो तेरा सर कलम कर देता। ये बेदारी हमारे मुआशरे में होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू और उनकी इज्जत पर मर मिटने का जज्बा हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए। याद रहे, आपको शायद मेरी बातें खिलाफ मौजू लग रही हों, लेकिन खिलाफ मौजू तो हैं ही, लेकिन जरूरी बातें हैं, इन्हें सुन लें आप। हाँ, मुवाफिक जरूरत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जहां वहाबियत को हमें रोकना है वहां अपने बच्चों को सच्चा आशिक रसूल बनाना। आज के दौर में याद रखिए, अगर इश्क़ रसूल हम अपने बच्चों के सीनों में पहुंचा देंगे और उनके सीने इश्क़ रसूल से मुनव्वर हो जाएंगे तो उसका वाहिद जरिया हमारे मदरसे हैं। शायद आपको यहां में ये बात भारी मालूम हो, मगर सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो ईमान सलामत है और हम सुन्नियत पर कायम हैं, ये इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की देन नहीं है, ये सुन्नियों के गरीब मदरसों की देन है। इसलिए ये मदरसे हमारी बुनियादी जरूरत है। जब जब भी किसी भी मुल्क में इस्लाम को कमजोर करने की कोशिश की है तो तारीख शाहिद है, सबसे पहले उस मुल्क में मदरसों को कमजोर किया गया है। आज के दौर में आप समझते हैं सबसे बड़ा टारगेट हमारे मदरसे। हमें अपने ईमान के तहफ्फुज़ के लिए और अपने बच्चों की सुन्नियत को बचाने के लिए चाहे जो भी कुर्बानी देना पड़े,
मगर अपने मदरसों को कमजोर ना होने दीजिएगा। याद रखिए, आपके गांव का मदरसा भी मदरसा अजीजुल उलूम है और अजीजुल उलूम भी आपके गांव का मदरसा है। हर सुन्नी मदरसा हमारा अपना है, हर सुन्नी मदरसा हमारा अपना है। और ये अपने बेगाने की तमीज हम लोग बहुत करते हैं कि ये फला का मदरसा, ये फला उसके मौलवी ऐसे। मदरसे सब मुसलमानों के हैं, मदरसे सब मुसलमानों के हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह किस मदरसे को किन से चलवा रहा है, किसी मदरसे को कोई और हजरत चला रहे हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन सबका मिशन एक, ईमान और सुन्नियत की खिदमत करना, दीन और सुन्नियत की खिदमत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के लिए बुलाया था हजरत अबू बकर सिद्दीक को। अपने घर का पूरा माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर पहुंच गए। बड़ा मशहूर वाकया है। आका ने फरमाया, अल्लाह की राह में सदका करो, माल खर्च करो। खलीफा सोम हजरत उस्मान जुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु 10,000 मुजाहिदीन का साजो सामान लेकर के हाजिर हो गए। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम माली ताउन चाहता है। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु 10,000 दीनार आप लेकर के हाजिर हो गए। 900 ऊंट हजरत उस्मान, जिस वक्त मेरे रसूल ने फरमाया था कि माल हाजिर करो, 900 ऊंट लेकर के हजरत उस्मान गनी हाजिर हो गए। ये ऊंट बोलने में तो बहुत छोटा है, मगर देखने में ऊंट बहुत बड़ा है। गिरी हालत में भी ऊंट 10,000 रुपया से कम क्या मिलेगा, आपसे ज्यादा खाएगा। अब 900 ऊंटों की कीमत आप जान लीजिए। 900 ऊंट, बस 900 ऊंट अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर किए। और 100 घोड़े मां साजो सामान हजरत उस्मान गनी हाजिर करते। हजरत उमर ने सोचा कि इस वक्त माल मेरे पास बहुत है, मैं नबी की बारगाह में बहुत सारा माल पेश करूंगा तो और दिन तो मैं सब तक नहीं ले जाता था, लेकिन आज हजरत अबू बकर सिद्दीक पर बरतरी हासिल कर लूंगा। अपने घर गए और सामान के 2 हिस्से किए, आधे हुजूर की बारगाह में, आधा घर। नबी ने इरशाद फरमाया, उमर क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आधा घर वालों के लिए छोड़ करके आया हूं और आधा आपके लिए लेकर आपकी बारगाह में पेश करने के लिए लाया हूं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने से चले आ रहे हैं, एक कबा पहने हुए, अचकन, जिससे हम लोग उमूमी जबान में जुब्बा कहते हैं, हालांकि कुछ फर्क होता है। एक मोटा कबा पहने हुए हैं और उसमें कांटे बबूल के दरख्त के लगे हुए हैं, बटन की जगह बबूल के दरख्त के कांटे पहने हुए हैं, और सारा सामान मेरे नबी की बारगाह में पेश कर दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या लाए हो? तो अबू बकर तो जानते ही हैं कि मैं क्या लाया हूं, मेरे नबी को मालूम है, लेकिन दुनिया को बताना है कि ताकि दुनिया अबू बकर सिद्दीक की अज़मत को समझ जाए और उनके इश्क की हालत को जान ले। नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये सब हाजिर है। अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? अर्ज करते हैं, अब क़ैतुल्लाहुमुल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आए। महफिल सजी हुई है खैरुल अनाम की। इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, तो वही लिबास जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहने हुए हैं, उसी लिबास में आज हजरत जिब्राइल भी उतरे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल ये कैसा लिबास है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह का हुक्म सारे फरिश्तों को यह है कि जो लिबास अबू बकर पहने हुए हैं वही लिबास सारे फरिश्ते पहने। और हजरत जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कह दीजिए कि मेरे रब ने इन्हें सलाम भेजा है। और हजरत जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह ने मालूम करवाया है, या रसूल अल्लाह, इनसे पूछ लीजिए अबू बकर से कि ये इस हालत में, यानी सब माल अल्लाह की राह में दे लेकर आए हैं, इस हालत में अल्लाह से नाराज हैं कि राजी हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब सुना तो फरमाया, रोने लगे और रोते हुए फरमाते हैं, क्या मैं अपने रब से नाराज हो सकता हूं? क्या मैं अपने रब से नाराज हो सकता हूं? क्या मैं अपने रब से नाराज हो सकता हूं? ये 3 बार फरमाया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उम्मत में जिसने मुझ पर एहसान किया था, मैंने सबका बदला दे दिया है, सिवाय अबू बकर के। उनके एहसानात
मेरे ऊपर इतने हैं कि जिनका बदला तो इन्हें इनका रब देगा। ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं। आका फरमाते हैं, मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर। आका ने फरमाया, जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने पहुंचाया है, इतना फायदा मुझे किसी दूसरे इंसान के माल ने नहीं पहुंचाया। एक दिन नबी ने फरमाया, अबू बकर, जितना फायदा तेरे माल ने पहुंचाया, इतना किसी और के माल ने नहीं पहुंचाया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये माल क्या है? ये मेरा माल और मेरी जान सब आपके लिए, सब आप पर फिदा है। ये इश्क़ रसूल, आज रसूलुल्लाह के नाम पर अगर नाच गाने करवाने की बारी आ जाए तो आज के हमारे अमीरजादे होटलों में बैठ करके तवाइफ का नाच करवाते हैं। ये तल्ख जुमले नहीं है, ये मुआशरे की सच्चाई है, इसको आप भी जानते हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के लिए 10 रुपया मांग लो, उनके नाम से चलने वाले मदरसों के लिए 10 रुपया मांग लो, 100 रुपया मांग लो, तो लोग देते हैं, मगर देते हुए बहुत सोचते हैं। ये 100 रुपए के लोग गुटके और चाय कर जाते हैं, मगर मदरसों और मस्जिदों के लिए, रसूलुल्लाह के मिशन के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अगर कौम से 50 रुपया मांगा जाए तो 10 बार सोचते हैं। क्या हम इसी तरह के आशिक़ रसूल हैं? अल्लाह हमें हिदायत दे। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उनकी अफजलियत पर बात बहुत हो रही है, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में जान है, इंशाअल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमतों के गुण गाते रहेंगे। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। नबी ने फरमाया, मेरे हजरत अबू बकर की मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना, ये मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। जोर से बोला जाए सुभान अल्लाह। उनसे मोहब्बत और उनका शुक्र अदा करना, ये मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अमा इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर सुन लो, जन्नत में सबसे पहले मेरी उम्मत में से अगर कोई जाएगा तो वो अबू बकर होंगे। सबसे पहला मुसलमान अबू बकर, सबसे पहला जन्नती अबू बकर, सबसे पहले खलीफा अबू बकर है ना। रसूलुल्लाह के मिंबर पर खड़े होने वाले सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अकबर। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये ख्यालात थे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी हमारी मोहब्बतें सलामत रहें। हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को हम अपने दीन की बातें बताएं। ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है यहाँ के अच्छे और ईमानदार लोगों से कि जब वक्त मुनासिब रहा करे तो कम से कम 2-3 घंटे की महफिलें हर शहर के कोने में हो जाएं। और मैं वादा करता हूँ अल्लाह के घर में, मुझे आपसे 1 रुपया भी चाहत मुझे नहीं होगी। और मुफ्ती साहब भी इंशाअल्लाह, हमारे असातिज़ाए उलूम इंशाअल्लाह, और हमारे उलमाए नानपारा असातिज़ाए मिसबाहुल उलूम इंशाअल्लाह, आप अपनी दीनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपने बच्चों को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, हमें जिस लायक अल्लाह ने मुझे बनाया है, हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम खाना भी अपने घर खा करके आएंगे, या जो भी अल्लाह का हुक्म होगा वैसे कर लिया जाएगा। और ये साल में कम से कम 2-4 महफिलें इस तरह से होती रहेंगी तो हमारे बच्चों में भी बेदारी पैदा होगी। मैं तकरीबन 7 साल हो गए हैं मुझे, 8 जनवरी सन 2023 को 7 साल हो गए नानपारा में। शायद किसी अवामी जलसे में सिर्फ अभी अक्टूबर या नवंबर में जो हमारे स्वागत बीड़ी वालों ने जो जलसा करवाया था, शायद ये मेरे समझ में ये पहला जलसा था मदरसों के जलसे के अलावा। तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे गांव में कई बार हम लोग तकरीर करने जाते हैं, बड़े बड़े कस्बों में तकरीरें करने जाते हैं, और जितनी महफिल यहाँ हो रही है, इतनी महफिल करने के लिए लोगों को बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है आपके नानपारा में उलमा खूब हैं और अच्छे अच्छे उलमा हैं, है ना। अपने उलमा से राब्ता करके दीन की महफिलें सजाई जाएं, और कोने कोने में, नानपारा के कोने कोने में पहुँच करके दीन के काम को आम किया जाए। और ख़ास तौर से जुमे के दिन जब हम लोग यहाँ रहते हैं
تو ہمارے علماء اس کے لیے بھی تیار ہیں. اپنی مسجدوں میں اگر آپ حضرات کی خواہش ہوگی تو ہر وقت نہ صحیح لیکن مہینے میں ایک جمعہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہم اپنے عالم دین کی تقریریں سنیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری قوم کے بچوں میں بیداری پیدا ہو. یاد رکھیے اگر ہم نے سنبھال لیا اپنے بچوں کو سنبھال لیا، ورنہ اللہ نہ کرے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر وہابیت کے چنگل میں پھنس گئے تو پھر نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. انشاءاللہ جیسے ماضی میں وہابیت دم توڑتی رہی ہے مستقبل میں بھی ایسا ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، محبتیں پیش کرنی ہوں گی. صرف ایک بات عرض کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. اب اس بات کو ذرا ضرور سن لیجئے، یہ کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ستارے نکلے ہوئے ہیں، ستارے اپنے شباب پر ہیں. میرے رسول کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے. حضرت عائشہ جو میرے نبی کی چہیتی بیوی ہیں، ان کی گود میں میرے نبی کا سر ہے. اب حضرت عائشہ کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہیں، کبھی ستارے دیکھتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو نور علی نور، نیچے دیکھیں تو نور علی نور. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے نبی کو کس امتی کی نیکیاں کتنی ہیں. لیکن یہ بدھو مولوی کہہ رہا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. وہ حضرت عائشہ آسمان کا سوال کر رہی ہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں، مگر یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے. اس لیے امام احمد رضا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کہ اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں جتنے یہ آسمان میں ستارے ہیں. تو اگر میرے نبی کو نہ معلوم ہوتا تو خود فرماتے عائشہ یہ کیا پوچھتی ہو مجھ سے، کیا میں ستارے کوئی گن تھوڑی رہا ہوں یا امتیوں کی گنتی تھوڑی کر، نیکیوں کی گنتی تھوڑی کر رہا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا ہاں عائشہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، میرے عمر کی ہیں. تو حضرت عائشہ چونک گئی، انہیں یہ لگتا تھا نبی یہ جواب دیں گے کہ اتنی نیکیاں حضرت ابو بکر کی ہیں. تو تعجب کی حالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ تب میرے باپ کی نیکیوں کا کیا ہوا، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو نبی فرماتے ہیں عائشہ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. آج اس عظیم عاشق رسول کو سلام محبت پیش کرنے آئے ہیں. اللہ آپ سے اگر ہو سکے تو آج نہ ہو سکے تو کل نہ ہو سکے تو پرسوں نہ ہو سکے تو مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی فاتحہ خوانی اپنے گھر پر ضرور کریے. 11ویں شریف خوب کرتے ہیں لیکن ابو بکر غوث اعظم کے بھی آقا ہیں، وہ آقاؤں کے آقا ہیں. دنیا کے سارے اقطاب، اغواص، اولیاء ایک طرف ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ میری ساری امت کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو اور ابو بکر کی نیکیاں ایک طرف رکھ دو. تو حضرت ابو بکر کی نیکیاں اور ان کا ایمان دنیا کے سارے مسلمانوں کے ایمان پر بھاری ہے. اللہ سلامت رکھے. مفتی خالد رضا صاحب انشاءاللہ اچھی تقریر کریں گے، ان سے امید ہے تشریف لائیں گے. جو کچھ عرض کیا مولا کریم اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.